جا کے اللہ سے ملا دیتی ہے تو پھر وہ چاروں کیوں کافر ہو جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، یہ تو پھر دین میں گڑبڑ ہوئی نا، ان چاروں بندوں کی تو غلطی نہ ہوئی؟ آپ مجھے یہ والی بات ان میں سے کسی سے جواب لے کے دے دیں۔ واٹر بھائی بات نہیں سمجھ آئی کہ اسوہ حسنہ کہاں ملا دیتی ہے ہمیں؟ جب آپ اسوہ حسنہ پہ چلتے ہیں، کوئی چار کائنات کے انسان اٹھا لیں اور وہ آج اسی وقت سے اسوہ حسنہ پہ چلنا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں چند گھنٹوں سے لے کے چند دنوں کے اندر جو ہے نا، اس کے ان چاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ایسے شروع ہو جائیں گے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے جڑ گئے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور رسول پاک کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ آپ کو وہاں پر لے کر جاتی ہے نا، تو یہاں پہ گناہ کس کا ہے پھر؟ کافر کیسے ہو جاتے ہیں؟ مطلب ان لوگوں کے نظریے میں تو جس انسان پہ کشف وحی الہام رویا یا کوئی اللہ کا انعام ڈائریکٹ ہوا وہ تو کافر ہو گیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، اسوہ حسنہ پہ چلنے سے یہ سارے انعام انسان کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی اسوہ حسنہ پہ چلتے چلتے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکا ہوا واٹر بھائی وہ ہے۔ اسوہ حسنہ پہ چلتے چلتے آپ وہ تو نہیں بن جاتے ہو نا جس کی اسوہ حسنہ پہ چل رہے ہو؟ وہ تو نہیں بن جاتے، لیکن حکم کس پر چلنے کا ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے؟ اسوہ حسنہ، لیکن وہ وہ ہاں، تو وہ وہ بس جب اس شخصیت پہ تو نہیں بن اسنا پہ جاتے نا۔ چلتے ہیں تو آپ کا لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ہی آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ چلو بات اسوہ حسنہ پہ، اور جب ڈاکٹر اللہ صاحب تعالیٰ بات آپ سے کریں، مخاطب ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے ہو۔ نہیں نہیں بس بات وضاحت کریں، کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کہ اس وقت اسنپ چلنے پر کافر چلنے پر انعامات، یہ جی وضاحت کہتے کریں۔ ہیں کہ وہ تو الہام الگ ہوتے ہیں تو ہمارا الہام تو، ہونے سے ہاں، تو ہم نے کس کی اسوا فالو کرنی ہے سارے مسلمانوں نے؟ ہمیں نبی وسلم آپ کی نبی صفیہ آپ ہاں بتائیں کہ کس کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کا حکم ہے سارے مسلمانوں کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سارے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بن جاتے نا۔ وہ نہیں بن جاتے، لیکن کچھ تو بن جاتے ہیں نا، عام نہیں کسی انسان سے میں تو ایک فرق ہو ایک بھی نہیں جاتا بن سکتا۔ ایک بھی نہیں بن سکتے، کیسی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہے۔ نہیں تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہی بن جاتے ہیں، نہ میں ٹھیک ہے، آپ پھر بن ٹھیک ہے، سکتا ہوں نہ آپ میں بن سکتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی وہی ٹھیک ہے۔ بن سکتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایک کوئی سے بن سکتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ تو صفیہ بابو بھائی جی کہہ رہی ہیں۔ میری بات سنو کہ انعام تو ایک جیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں نہیں انعام نہیں کون سے ملتے نہیں، ہیں؟ ایک جیسے انعام کوئی انعام نہیں مل سکتے۔ بھائی اس کی اچھا، تو کوئی نہ کوئی لیول تو بندہ اچیو کر جاتا ہے، یہ تو نہ کون کہیں۔ سا کون سا لیول؟ جب بندہ نیک ہوتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ عبادتیں کرتا ہے، وہ ایکسٹرا عبادتیں کرتا ہے، ایکسٹرا روزے رکھتا ہے، ایکسٹرا نوافل پڑھتا ہے، کیا نیکیاں نہیں کرتا کرتے؟ ہے، بہت قرآن آگے اور حدیث میں تو کہاں لکھا ہوا لازمی ہے کہ بات یہ سب کچھ کرو گے تو یہ ملے آپ گا؟ جس کو فالو کر رہے ہو آپ وہ بن جاؤ طارق گے؟ بھائی تھوڑی دیر ویٹ کر لو، طارق بھائی انہوں کر میں لین بالکل دیو وہ، ویٹ، تسی دیکھیں تسی سن لو یہ چپ کر کے، طارق دیکھیں بھائی سن لو سچا، چپ کر کے بالکل وہ تو کوئی بھی نہیں بن سوال سکتا۔ سمجھ لو نا، سوال سمجھ لو، پھر میں ہاں بالکل وہ تو ایڈریس کوئی بھی نہیں کرواؤں بن گی۔ سکتا، لیکن جو انعامات وہاں سے ملیں گے وہ تو ملیں گے۔ اب آپ جو فصل بو گے اس کا پھل تو کاٹو گے، اگر آپ نیکی کی اور روحانیت کی فصل بو گے تو اس پر پھل تو لگے گا۔ اچھا، آپ اب سمجھ آئیے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی، ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پوری طرح ہاں فالو کرتا ہے، ہاں لیکن وہ نہیں بنتا، لیکن اس کو ہاں، انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں اور نہیں؟ اس انعام میں جو ہے وہ کشف اور مکاشفہ شامل ہے۔ کشف، مکاشفہ، نعمتیں، دعاؤں کی قبولیت، اسباب، انعام، رحمتیں، لوگوں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا فیض، بے تحاشا رحمتیں، رونقیں، ہر چیز ملنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی اس کو کہتے تھا کہ تم اب کافر ہو گئے ہو؟ ہاں تو فوراً ہی جو لوگ جیلس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جناب اس نے تو دعویٰ کر دیا نبوت کا، یہ نہیں، تو اب جناب ابھی کہتا ابھی ہے تو کہ یہ اللہ ڈیسائیڈ ہو مطلب، گیا کہ اس نے دعویٰ کوئی نہیں کیا ہے ہاں وہ تو نہ اب۔ بھی کریں تو آپ لوگ جو ہے اس کو جینے ہی نہیں دیتے کہ جناب اس بندے سے کیسے یہ والا کام ہو گیا، یہ کہتا ہے مجھے سچی خوابیں آتی ہیں، مجھے ہم، اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیتا ہے مصیبت کے ابھی اس آنے نے سے دعویٰ نہیں کیا پہلے اور نہ ہی دوسرے اس نے یہ بتا کہا ہے دیتا مجھے ماننا ضروری ہے۔ ہے۔ ہاں تو اور کیا، یہ اس کو دعوے کا ماننا ضروری نہیں ہے، اس نے اپنے لیے یہ سب محنت کی ہے اور اللہ کوئی میاں اس کو اپنے اجر لیے دے رہا محنت ہے۔ نہیں کی، اللہ میاں نے رجحان کچھ لوگوں کا ایسا رکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جان کے بھی ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں اور محنت کر کے بھی ایسے کرتے ہیں، ان کو محبت ہوتی ہے اپنے مالک اور خالق سے اور رسول کریم سے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, نہ اس نے دعویٰ کیا ہے نہ وہ آپ اس نے اس کو نعمتیں ملی ہیں. آپ لوگ فوراً دعووں پہ کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں نے کس کی اسوا فالو کرنی ہے؟ آپ دعوے 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 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کیا دعووں کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو اپنے اللہ سے تعلق ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ کیسے ہوئے گا؟ اسوہ حسنہ پہ چل کر ہوئے گا. بے شک. اچھا, میں میں تو آپ کا ٹاپک سوال پہ میرے سمجھنے کی خیال میں کوشش واپس کر رہا آیا ہوں. جائے, باقی بھی لوگ آئے ہیں تو ٹاپک پہ واپس آ جی جائے. جی اس میں گناہ ٹھیک کیا ہے ہے اسوہ حسنہ کو ٹھیک ہے. فالو واٹر کرنے بھائی, کا؟ میں آپ کا سوال جو ہے نا اور جہاں دوسری تک بات سمجھ گئی, یہ ہے کہ فرشتے تو ہر وقت نازل ہوتے ہیں, پہلے بھی ہاں, ہوتے تھے, آئندہ بھی ہوں میں گے. ایڈریس کرواتی ہوں, قرآن آپ کا قرآن سوال شریف ایڈریس گواہی کرواتی دیتا ہے اس کی. ہر سال ہوں. وہ جو سورہ قدر گواہی دیتی ہے اس کی. آپ لوگ رمضان میں اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں پھر؟ آپ ٹھیک ہے, کیوں؟ بعد میں بھی موقع آ جائے گا جی, ایک بار ہی ساری میں جو آپ نے واٹر کی بھائی, ہے. میں آپ کا جو ہے نا نہیں, واٹر بھائی آپ کو پسند نہیں کہنا واٹر, ایک منٹ. سیکر, آپ کو جو بیسک سوال ہے وہ سمجھ آ گیا کہ اسوا کو جی جی, فالو بیسک کرتے ہیں. سوال سمجھ آ گیا ہے, اور آپ یہ ایڈریس تو کریں خیر ذرا. باقی ارریلیونٹ بات تھی. سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی محمد بن جاتا ہے یہ کام کرنے سے؟ اب انہوں نے کہا جی اسوا کس کا فالو کرنا ہے. اب یہاں جو لوگ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کر, اور کہتے ہیں کہ ہم پہ انعامات بھی ہو جاتے ہیں, اور ہم جدی جماعت پہ بھی, ہمارا خدا بھی زندہ ہے, اور ابھی کتنی ماشاءاللہ پیاری تقریر کی ہے, اور ادھر ننگی ماں بہن کی گالیاں جناب دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہاں انعام آپ پہ ہو جاتے ہیں, آپ پہ. لیکن آپ اب ان پرسنل کو نہ ہم ہو نا, کیا آپ کہیں؟ یہ جنرل کرائٹیریا کا سوال کریں نا. نہیں آپ نہیں, واٹر میں کہہ رہا ہوں ادھر, میں کہتا ہوں دیکھیں جو بھی بندہ یہ کلیم کرے کہ جی ہم لوگ وہ ہیں جن پہ انعامات ہو جاتے ہیں, اور ماں بہن کے ساتھ گالیاں بھی نکال دیں, اور پھر کہیں کہ اب ہمیں کافر لوگ کہیں گے اس انعام کے اوپر, یہ کیا بات ہے بھائی؟ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن سکتا ہے معاذ اللہ؟ انہوں کون نے سے کہا نہیں اسوا بن پہ چلنے سکتے. پہ کون سے نام؟ وہ کہہ تو رہے پھر ہیں الہام و ہم کشوف و اسوہ حسنہ کو مخاطبہ. فالو کرنا بند کر دیں, ہم کسی اور چیز کو آپ فالو کو کرنا شروع کر دیں. ابھی ہم کیا کریں پھر؟ ہم جو مجھے مسلمان بات پوری لوگ کر لیں ہوتے دیں, آپ ہیں. نے کر لی اپنی بات, آپ نے اپنی بات پوری کر لی ہے, کراس مجھے پوری کر کراس لینا. ٹاک بالکل نہیں ہوگی آج اس دیکھیں میں. اتنی سی بات ہے کہ اس کے اندر اب بات آ جاتی ہے کہ جناب محمد ہی نام اور محمد ہی کام, کیا یہ زیادہ اسوہ حسنہ پہ چل رہی ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے, مولا علی علیہ السلام سے؟ انہوں نے کیا وجہ ہے؟ کیا وہ نہیں تھے معاذ اللہ, ان کو نہیں پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, ان کا اسوہ کیا ہے, ان کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ نہیں چل پائے, کیا انہوں نے خود کو محمد کہہ دیا معاذ اللہ؟ خدا کا خوف کرے. اور اصل جو یہاں پہ ٹاپک چھڑا ہوا ہے یہ ساری لایانی قسم کی گفتگو ہے اور ارریلیونٹ گفتگو ہے. ٹاپک یہ چھڑا ہوا ایک عام احمدی جس کو پوری زندگی وہ بچپن سے نعت پڑھتا رہا ہے کہ علیہ کا صلاۃ و علیہ کا سلام, محمد ہی نام اور محمد ہی کام, اس کو اب جا کے پتا چلا کہ بیچ میں مرزا غلام احمد صاحب شامل ہیں. یہ مرزا غلام احمد صاحب شامل ہیں, محمد ہی نام اور محمد ہی کام. اس کو ایک شوق ملتا ہے, اور یہ شوق کوئی نیا نہیں ہے. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ آپ کو کیوں شوق لگا اس پہ اتنا. کیا جب احمدی بچپن میں قرآن پڑھتا ہے تو وہ احمد کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا؟ وہ تو بڑے ہو کے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو مرزا صاحب کا نام ہے قرآن پاک میں. آپ مجھے بتا دیں آپ کو کب پتا چلا تھا اس چیز کا؟ بہن آپ ہی مجھے اس بات کا بتا دیں. ٹک ٹاک پہ آ کے. ٹک ٹاک پہ آ کے ہمیں بھی ٹک ٹاک پہ آ کے پتا چلا, ورنہ تو ہم بھی یہی کہتے تھے نہیں یار کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو ٹک ٹاک پہ آ کے پتا چلا کہ اس محمد کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں محمد رسول میرا نام رکھا گیا. مرزا صاحب شامل ہے اس میں, خاتم النبیین میں مرزا صاحب شامل ہے, رحمت العالمین میں مرزا صاحب شامل ہے, ورفعنا لک ذکرک میں مرزا صاحب شامل ہے. کوئی چیز چھوڑی ہے جس میں نہ انا اعطیناک کل کوثر میں مرزا صاحب ہے؟ سورہ صف میں تو خیر ہے ہی مرزا صاحب نا, اس میں تو بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں نام ہی قرآن پاک میں مرزا صاحب کا ان کا ہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف صفت احمدیت کی وجہ سے شامل ہے, اور جس میں آپ بھی شامل ہیں ہم بھی شامل. اور جو تعریف کرے گا وہ احمد بن جائے گا, وہ کہتے ہیں پوری امت ہی اس میں شامل ہے. تو وہ نبی پاک صرف اسی وجہ سے اس میں شامل ہے, ویسے وہ مرزا صاحب کا نام ہے قرآن میں. تو آپ کو تو شوق لگنا ہی نہیں چاہیے. جہاں جہاں پر میں آپ کو آج مزے کی بات بتا دوں, جدھر آج سے پلے یہ بات مان لیں بہن, جماعت احمدیہ جدھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی, جہاں جہاں ان کے لیے کچھ لکھے گی, مرزا صاحب اس میں لازم و ملزوم ہے ان کی طرف سے. یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں. جزاک اللہ. تنگی بھائی السلام آئے علیکم ہیں؟ ورحمۃ اللہ.
जी अगली का भाई। ये देखे ना अभी सीकर साहब ने कितना बड़ा इल्जाम लगाया, आप इस पे खामोश रहे नाम ना, मत कुछ लीजिए, नहीं अपनी बात बोला। करें और टॉपिक पे रहे, मेरा जवाब ना दे रहे आप, अगली का अपना भाई टॉपिक की बात। उन्होंने जी इल्जाम लगाया तो जवाब में आप भी उनको बता दें। अब इसके अंदर होस्ट को ये कहना कि मैं खामोश रही, मैं क्या करती, मुझे बताएं, नहीं, आपकी ब्रॉड हो। मैं वही बताता हूँ ना क्या करना चाहिए। जब भी कोई इस तरह की बात करे, अगर आप मुसलमान हैं तो उन्हें जारी रखना चाहिए, अगर आप अहमदी हैं तो आप उन्हें बता दें अपने फहम से कि ऐसी बात तो नहीं है हमारे कहीं भी। उन्होंने खलीफा मैं दिखा दूं दोम की, बहन, मैं साथ सबूत दे दूं? जी आप सबूत दे दें, अगर ना दे पाए तो कान अगर दे पकड़ेंगे दिया तो यहीं, आप माफी मांगेंगे? यहीं पे कान पकड़ेंगे आप कान पकड़ेंगे अगर मैंने दिखा दिया? मैं कान पकड़ूंगा। पकड़ेंगे? जी मैं पकड़ूंगा। अच्छा जी ठीक है, ले भाई आप सबूत आने गुफ्तगू लगा हो है। जाएगी। 2 मिनट दे, सफिया सबूत आ साहबा रहा की है। बात एक करके मिनट चला वाटर साहब, गया। आप तो चुप करें ना। सफिया अगर साहबा मैंने से ये मैंने दिखा बात दिया, करनी है, अगर मैं एक मिनट फैसला भाई, एक आपसे वो करूंगा। सेकेंड, क्यामत तक नहीं दिखा सकते यार, ओ एक क्यामत सेकेंड, तक नहीं दिखा एक सकते। मिनट, एक अच्छा मिनट, एक मिनट सबूत आपस दोस्त। में आप लोग क्रॉस टॉक ना करें। बहन मैं सबूत दिखाने लगा हूं, अब आपने कान पकड़वाने हैं बंदे से बिठा के इधर, ठीक हो गया? जी ये क्यामत तक सबूत नहीं दे सकता, इसको आपने चलो, कहना कि अभी से कान पकड़ ले और सबूत दिखाता इसको जाए, इसको किया सफिया ना, और साहबा ये इसको कभी भी किया तो मेरा तुम्हारी आपसे ये जो सवाल दबाता है, है ना मुनाफकत का, ही मैं आप उतार के 2 मिनट में पूरे ओके कर भाई, दूंगा, इसको अब इसको नहीं अभी करना। आपको मौका मिलने वाला, मैं बता रही हूँ पहले, बात देखिए मेरी तमीज से बात करनी है। एक एक मिनट दे दीजिए, उसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा सफिया साहिबा बात सुने जी कि जी ये कंटिन्यू। जितनी मुसलमान औरतें हैं, इन्होंने किसकी उसवा पे अमल करना है? मुसलमान औरतों ने किसकी उसवा पे अमल करना है? फायजा बीबी की। ठहर के मैं सफिया साहिबा से सवाल पूछ रहा हूँ। मुसलमान औरतें हों या मुसलमान मर्द हों, हमारे लिए हाँ बेहतरीन हुस्ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो क्या औरतें जो हैं वो भी मोहम्मद बन जाएंगी? नहीं, मर्द ऐसा भी बन नहीं है, सकते हैं। ऐसा नहीं है। बात ये है कि हमने रूहानियत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मर्दों, औरतों, बच्चों, बच्चियों, सब ने उसको फॉलो करते हुए चलना है। और सब के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास इनामात रखे हुए हैं जो मोमिनों के लिए हैं। ये दुनिया के इनामात तो एक तरफ रह जाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। तो आपने जब रसूल अल्लाह की सुन्नत फॉलो की, आपने जब उनकी उसवा फॉलो की, तो आप भी एक रूहानी मुकाम पाएंगी और मैं भी पाऊंगा। ना मैं मोहम्मद बन जाऊंगा, ना आप मोहम्मद बन जाएंगी, ना कोई बच्चा मोहम्मद बन जाएगा, लेकिन मोहम्मद का गुलाम जरूर बन जाएगा। ये लोग हमें मोहम्मद का गुलाम भी नहीं बनने देते। मोहम्मद ही नाम और मोहम्मद ही काम। हमने नाम भी मोहम्मद का लेना है दरूद शरीफ में, नमाज में, और हमने काम भी मोहम्मद वाले करने हैं। तो गुनाह क्या है इसमें? और क्यों इतने जालिम हो गए हो? क्यों अल्लाह को मानने वालों के इतना पीछे पड़ गए हो? फिर हम गालियां दे दें कहीं गुस्से में आकर तो कहते हैं ये तुम्हारा, ये किसकी उसवा फॉलो कर रहे हो? हम गुनाह कर बैठे हैं भाई, वो हमारा गुनाह है, हम मानते हैं। और जो अच्छी बात है हम उसका भी इकरार करेंगे, और वो हमें हमारे अल्लाह से मिलाएगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। पता नहीं तुम लोगों को कोई बात समझ ही नहीं आती, और नेकियों को गुनाह का नाम दे देते हो तुम, इनाम को गुनाह और जुर्म और शैतान से ताल्लुक का नाम दे देते हो। माफ कर दो यार तुम लोग हमें। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। वो सबूत जब तक लेते हैं वो, तो हम मेरे पास 3 मेहमान आए हुए हैं जिनसे मैंने बात ही नहीं की है। तो सबसे पहले तो जाहिद जमील भाई आए थे। जी जाहिद भाई, ठीक है, अगर वो बिजी हैं तो तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई क्या हाल है? जी ये तो शेखर साहब तो इतने इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सल्लम का ग़ुलाम हूँ, एग्जैक्टली। जो कुछ भी हमने पाया शाहिद है तू खुदाया। वो तो कहते हैं मैंने सारा कुछ उसी से पाया है। तो ये आप झूठे इल्ज़ाम तो ना लगाएं। यस 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 यस। और इसी के ऊपर जो है ग्लीका भाई ने सबूत मांगा है, और सीकर सबूत लेने गए हैं। तो आज इनसे सबूत लिए बगैर सीकर अगर गए तो फिर हम इनके ऊपर ब्रॉड वो लगा तो के कहेंगे कि बार सबूत बार नहीं। कहते हैं मैं मोहम्मद पर हमारी जान फिदा है कि वो कुएं सनम का रहनुमा है। मेरा वो दिल तो उसने रोशन अपनी कर हर दिया। किताब में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कर रहे हैं, और ये खामखाई झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
जो कुछ भी एग्जैक्टली हमने पाया शाहिद है तू खुदाया, ये वो तो ये कह रहे हैं अपने आप में, मैं तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। अभी वो तो देते हैं सबूत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कहते हैं, जिंदगी बख्श ये जाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम नारा ये नाम अहमद है, अहमद। लाख हों अंबिया मगर बखुदा सबसे बढ़कर मुकाम अहमद है, बाग अहमद से हमने फल खाया, मेरा बोस्तां कलाम अहमद है, इब्न मरियम के जिक्र को छोड़ो उससे बेहतर गुलाम अहमद है। वो तो कहते हैं अब हजरत ईसा को हजरत ईसा की नबूवत ख़त्म हो चुकी, इससे बेहतर तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। जजाकल्ला। ये जी मैं दूसरी आईडी इसलिए पहले नहीं उतारी, इन्होंने कहा था देखा है भाग गया, देखिया भाग गया, तो अब ना नीचे कर दी सीकर वाली आईडी, तो 2 मिनट अगर कोई गेस्ट लेना हो तो कर दीजिएगा, वरना रहने दें। तो ये देखें जी, सबसे बढ़कर नाम अहमद है, सब अंबिया से बढ़कर अहमद है, यही कहा है भाई ने अभी। नहीं, ये अहमद ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ये मिर्जा साहब लिख रहे हैं हाँ ठीक है अपने आप, तो आप तो अपने आप को तो नहीं कह रहे वो। इससे पहले ये कि सबूत लगे, मुझे 2 मिनट चाहिए, मैंने अली अहमद भाई को सलाम करना है। जी अली अहमद भाई, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कंटिन्यू रखें, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है भाई, सही। जज़ाकल्लाह। अब सीकर के हमने कान पकड़वाने, क्योंकि हमें ज़्यादा पता है कि हमने बचपन से जो है ये चीज़ें। प्यारी बहन, मैं एक और उनका कलाम सुना दूं, 2-3 शेर, आप हैरान हो जाएंगे। वो कहते जरूर हैं, वो पेशवा हमारा जिससे वाह, है नूर सारा, नाम नाम उसका है मोहम्मद, सल्लल्लाहु दिल अलैहि भर मेरा यही है, सब पाक हैं पैगंबर एक दूसरे से बेहतर, लेकिन खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। तो वो कहते हैं, वो आज शाहिदी हैं, वो ताज मुरसली है, वो तैयब व अमी है, उसकी सना यही है। इतना ऐसा पकीज़ा कलाम है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बयान किया। तो मिर्ज़ा साहब तो अपने आप को कहते हैं, मैं खाक हूँ उनकी कदमों के, जो कुछ पाया मैंने उससे पाया। ये तो सरासर इल्ज़ाम है। एक जगह पे उन्होंने नहीं लिखा कि मैं मोहम्मद से बढ़कर हूँ, नाउज़ बिल्लाह। यहाँ तनवीर साहब एक मिनट, तनवीर साहब, ये सवाल जो आपने शेर पढ़ा है, छोड़ो जी ये इब्ने मसीह को उससे बेहतर है गुलाम हाँ अहमद जी, जी का दोबारा शेर पढ़ना, इब्ने मरियम के दोबारा शेर जिक्र पढ़ने को इसको। छोड़ो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है। वो तो एक तो बनी इससे इसराइल मुराद के नबी थे, जिक्र छोटे है से। या ईसा अलैहिस्सलाम है? वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ईसा से ऊंचे हैं। कैसे होते हैं? कुरान तो कहता है सारे नबी बराबर हैं, तुम कैसे कहते हो नहीं ऊंचे हैं? नहीं नहीं नहीं, हजरत सल्लम नहीं, कुरान नबियों लाने के फर्क होगा। सरदार हैं। कुरान कहता है कि फर्क नबी में फर्क मत डालो, आप कैसे कह रहे हैं कि उससे बेहतर है? कैसे आप बात कर रहे कुरान हैं? ये भी कहता है कुरान कि की भी अगर सारे अंबिया वापस आ जाएं, उनको हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के सिवा कोई चारा नहीं। बता दी करेंगे ना, बेहतर तो नहीं होंगे ना। अतात तो मिर्जा साहब भी तो अतात ही कर रहे हैं। मुताद कर रहे हैं, तो क्या आप कह रहे हैं बेहतर है? वो कैसे बेहतर है भैया कुरान ईसा तो कहता अलैहिस्सलाम है, से? वो अल्लाह कह रहा है, हदीस में कुरान आया कह रहा है, कुरान तो कह रहा है ना कि सब फर्क मत डालो, आप कैसी बात कर रहे हैं? कुरान ये कहता है फिर कहते हैं कि आपसे नाराज होते हैं। मेरी बात सुने प्लीज। बस सुनो, कुरान आपकी ये बात बड़ी कहता गौर है से सुन कि रहा हूँ। ये बनी इसराइल के अंबिया जो हैं वो मेरी उम्मत के उलमा उससे बढ़कर हैं। वो तो कुरान ये तो कहानी ये कुरान में कहता लिखा है, हुआ है कहीं? कुरान कहाँ लिखा है? मेरी कुरान में उम्मत के कहीं भी नहीं उलमा लिखा है कुरान में। बनी इसराइल के अंबिया से बढ़कर हैं। ये ये कुरान में कहाँ लिखा लिखा हुआ है? मैं सूरत का आपको सबूत दे सकता हूँ। अभी अभी वाला दो, कुरान का अभी वाला दो, अभी वाला दो, कुरान में कहाँ लिखा है? मैं अभी अभी वाला आपको दो। निकाल के दे देता हूँ, ऐसी कोई बात मैं नहीं। कहता हूँ आप मैं मानने को तैयार हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ, अभी दो वाला। मैं अभी 2 मिनट में निकालता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं मैं कहता हूँ बगैर मैं मैं लिखा हुआ मैं दिखाऊंगा ठीक है, आपको। ठीक हो गया जी, मैं भी ठीक हो गया जी, सबूत ठीक है। रेडी है जी, दे दें। वो वाला निकालेंगे मैं तनवीर भाई। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ये स्क्रीन कैसे बड़ी करूँ। बहन अभी ठहर जाए, मैं निकाल लूँ हवाला। मैं आपको दिखाता हूँ कि आन सल्लम ने फरमाया कि हाँ जी, मेरी काट लो उम्मत तो उसी उतनी देर तक काट अब लो जी, आराम से वाला काट लो। निकालें। ओके
میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اسکرین بڑی کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ والی، اس والی سب کی ہو رہی ہے، میرے پاس آ رہا ہے یار اس کی آپشن نہیں آ رہی آپ کے پاس؟ نا. آپ خود کو کریں نا، ایکسپینڈ کریں، گیسٹ آپشن میں کلک کر کے جائیں، وہاں سے آ جائے گی آپشن. ملٹی گیسٹ میکسیمم. میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا ہے اور اب میں نیچے اگر کوئی ماڈریٹر ہے تو وہ دیکھے کر کے. میں نے اصل میں ماڈریٹر بھی ہٹا دیے تھے. میں بٹ جی یہ بھی نا ہمارے زندہ خدا کا معجزہ ہے، صحیح ہے. انہیں کہیں کہ تب تک یہ کان پکڑے رکھیں جب تک یہ انجلیکا بھائی معاملہ میں کلیئر آپ نہیں کے ہوتا. منہ پہ ایسی چپیڑ ماروں گا نا، آپ نے ایسی کیا بات کی، کیا تمہارے بات الفاظ میرے لیے نہیں کیا اللہ بات نہیں آپ تو بہت محترم ہیں، آپ کو بہت غصہ ہے مجھ دوبارہ پہ. کان پکڑنے کی بات کی تو میں چپیڑ آپ کے منہ پہ رکھ دوں گا، اس لیے کیا تمیز سے اپنی اوقات میں رہ کے بات کریں. کیا میرے سے آپ کا بات کوئی ہے، مذاق نہیں، غصہ نہیں کیا کریں. بات ہے. غصہ میرے نہیں ساتھ آپ غصہ کا نہیں کوئی مذاق نہیں ہے. مائک وہ بند کریں اپنا. اس اچھا ٹھیک ہے، اچھا اس وہ دن بتا کے دیے، بہت لیکن تپے ایسے ہوئے. غصہ نہ کریں. انہوں نے گستاخوں کو سپورٹ کرنے والوں سے ہمارا کوئی مذاق نہیں ہے، ہماری جوتے کی نوک پہ گستاخوں کو سپورٹ کرنے والے. چلیں چلے جی یہاں تک تو اتنا میں دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اسی اسکرین میں دکھا دیتا ہوں. اچھا جی یہ ہے جی انوار خلافت. ہاں بس اتنا ہی بڑا ہے. اس کو اگر یہاں پہ سیکنڈ پہ اس کو کر دیں. میں یہی کہہ رہی ہوں نا، یہ نہیں ہو رہا ہے نا ادھر. نہیں کوئی بات نہیں ہے، اتنا نظر تو آ ہی جائے گا. نظر آ رہا ہے، آس پاس رکھے ہوئے نظر آ رہا ہے، ہاں نظر میں آ رہا ہے، پورا کوئی بات پڑھا دوں گا. یہ پڑھیں جی، یہ ہے انوار نہیں. اس میں خلافت. احمد جی، اس میں احمد کی پیش پیشگوئی کے گوئی کے مطابق مصداق مساقت حضرت مسیح موعود ہیں یہ جی یہاں سے پڑھیں. ہاں میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہے. ماشاء اللہ. کون سی آیت پہ؟ اسمو احمد. ہم، ایک منٹ میں اس کو کیا کروں. اصل میں ان کا نام ہے. اب میرے خیال میں جب تک براڈ چلنی چاہیے نا، تے میں چلے یہ نہیں کہتا کون کان پکڑے، آگے سنیں. اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی حد تک ہے. یار ایک اسکرین ایک دفعہ ٹرائی کریں دوبارہ سے. خیر میں اس کو دوسری آئی ڈی لیو کرا کے دیکھتا ہوں، شاید کوئی سسٹم بن ہی جائے. یہ اسی کا میری اسی یہ ایم ڈی ڈیکوڈڈ ہے، یا سیکر والی آئی ڈی کو ایک منٹ موڈ بنا دیں. میں اس کو بڑی کر کے پھر ہٹا دیں بشک، مجھے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر بڑی ہو جائے یہاں سے. لیکن میں ایک منٹ کے لیے بناؤں گی. آپ دوسری آئی ڈی کو ہاں موڈ جی پہ فوراً. میں ایک منٹ، میں نے اس سے تو رہنا بھی نہیں. آپ پہ ایسے ہی مجھ پہ الزام لگ جائے کہ یہ موڈ سے تو. ٹھیک ہے. کون سی آئی ڈی بنا رہی ہے بتا دیں. دو دفعہ ای ہے اور پھر کے ای آر آر ہاں جی 101. ہاں جی اسی کو بنا دیں. یہی ہے. ہاں جی اوکے ٹھیک ہو گیا. لے جی اب ٹرائی مارتے ہیں. بسم اللہ. ایتھے رکھ جوانا. لے جی غور سے کریے گا دوستو، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں میں ایسے کروں نا، نہیں یوں ہی صحیح رہے گی. بلکہ چلے تو اسی فیئر ہٹاتا ہے، او میں نے نیا بندہ اٹھایا تو اس لیے غائب ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں.
अब कोई नहीं अच्छा करना। जी, अच्छा जी। वो कहते हैं जी मेरा कीता है कि आयत मसीह मौद के मुतालिक अहमद आप ही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपके सिवा किसी को अहमद कहना आपकी हद तक है। लेकिन ये गौर से पढ़े, मैं जहां तक गौर करता हूं मेरा यकीन बढ़ता जाता है और ईमान मैं ईमान रखता हूं कि अहमद का जो लफ्ज कुरान करीम में आया है वो हजरत मसीह मौद के मुतल्लिक ही है। ठीक हो गया जी, ये देखें उनके मुतल्लिक ही है। कान पकड़वाए बहन जरा, सबूत मिल गया आपको कि नहीं मिला? पहले आप हाँ या ना करें पहली अच्छा, बात का। यही बस सबूत है, कोई बहन मैं कोई और आपसे भी है? सवाल पूछ रहा हूँ, आपको सबूत मिला कि नहीं मिला? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब आपको सबूत भाईजान मिला? इस भारत आपके खिलाफ जा रही है, आप इसमें तो कान पकड़ लें मैं सबसे कह पहले, रहा अगर हूँ यही है। बहन जी आपको जी, सबूत मिला कि नहीं मिला जो मैंने बात की थी और कुरान पाक सबूत में मुझे नाम? देना है कि बहन को देना है? प्यारे भाई, आपने सबूत देना है मुझे, और ये भारत एक आपके से खिलाफ जा रही है, हाँ हाँ अगर मेरे यही है। खिलाफ जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। जी, सबूत अगर आपने कोई और 1 है तो आप मिनट दे दें। मैं दे देती हूँ, बात अच्छा कर ये लेती हूँ। पूछे से मुझे झूठा किस बात पे कहा था? क्या बात क्या हुई थी? मैं आपने किस चीज का सबूत देना था? रिपीट करें जरा सीकर। मैंने कहा था कि अहमदी बचपन से जब कुरान, इसको चुप करवाए ना 2 मिनट जरा, हाँ वो जी, उसको जारी बात है कान पकड़ते हुए तकलीफ होती है इस उम्र में। म्यूट कर लिया। मैंने ये कहा था कि अहमदी बचपन से यही पढ़ते आए हैं कुरान पाक में कि यार ये तो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद है कुरान पाक में। और मैंने आपसे पूछा बहन आपको कब पता चला? टिकटॉक, आपने कहा टिकटॉक पे आके पता चला कि ये नाम मिर्जा साहब का, यही कहा था आपने। जी, तो इन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है। बताएं इस बात का सबूत मैंने दिया कि नहीं दिया? अब आप माइक में बंद करें। जी अगली का भाई क्या कहेंगे? जी, सबसे पहली बात यह है कि खाली बहन, अगर आपको नहीं ना पता या चार अहमदियों को नहीं पता तो उनकी लाइल्मी हो सकती है, ठीक है। ये मुझे बचपन से पता था, ठीक है इसका। और मुझे कहा जाता था कि आप जो कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें आप मिर्जा साहब को भी शामिल करते हो। पहली बात मुझे पहले से पता है। उसके एक ऊपर हम नंबर। लड़ते थे। जब हमें भी कहते थे तो हम कहते थे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, बुहतान लगा रहे हो। आप क्या कहते जी थे आगे से? बिल्कुल, मैं तो ये कहता था कि जो कलमा में नाम है वो रसूल सल्लम का है, और क्योंकि वो गुलाम है तो वो उसके जिल बुरूज हैं। जिस तरह इंसान जो होता है चल रहा होता है, उसका साया साथ होता है, तो साया और वो वाला इंसान एक ही होता है। हम जो चीज़ वो होती है वही वो होता है, उसमें फ़र्क नहीं होता। तो हम तो इस एतबार से लेते हैं, और मैं साबित करूँगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी एतबार से लेते हैं। हम्म, और दूसरी बात जो अभी इन्होंने हवाला दिया है, उस पर हज़रत मुस्लिम मौद अलैहिस्सलाम शुरू में इस बात को क्लियर कर देते हैं। पहले वो बस बात को क्लियर करते हैं और फिर आगे वो तहरीर लिखना शुरू करते हैं। क्या चलिए, क्लियर करते हैं? हाँ, कि कुछ लोग ये कहते हैं, ये वो तहरीर दोबारा लगाएं, मैं वो सारी पढ़कर आपको वहां से क्लियर करता हूँ, लगाइए। मफहूमन बता दें, यार मफहूमन। ले जी नहीं, कुछ लोग कहते नहीं, हैं मैं सीकर आपने ले म्यूट रखना है। लगाएं मेरी लगाएं अगली का लगाएं। भाई से बात हो रही है। ठहरे ठहरे नहीं, ठहरे वो तहरीर बहन लगाएं, मैं ये बताता एक हूँ। मिनट मौका तो हाँ, दे, हवाला मेरा है, एक नहीं, सेकंड रुक बहन। जाना, आप रुक जाए, पहले मैं क्लियर कर दूं ना प्यारे भाई, फिर बहन अब आपने आप मुझे एक मिनट अंजलि आप के रुक। अब आपस बहन में ये आपस किताब में मैं कुछ शुरू से नहीं। कर रहा मैं हूँ, ये किताब में ना आप शुरू से, ये 13वां पेज आप था। पहले भी तपे हुए हैं प्यारे भाई, आप रहने दें। मैं आप एक मिनट चुप रहे ना जी, मैंने दिखाना है। बहन ये किताब आ गई शुरू से यहां से। अब ठीक है, आपने दिखाना है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे, ये इसके पीछे किताब जा नहीं रही, और मैं यही कोशिश तो कर रहा बात हूँ। है, कुछ लोगों में मेरे मुंह से निकल गया ना सब, तो मैं किताब पीछे, माफी हाँ चाहता मुंह हूँ। से निकल गया, मुंह से स्लिप अच्छा। हो गया, कोई बात मुंह से अब स्लिप आपस हो में गया। नहीं कोई बात बात करें। मुझे ये नहीं। बताएं अगलीका भाई जी कि जी ये जो अभी इन्होंने सबूत दिखाया है, आपने कहा ये आपके खिलाफ जाता है, इसको भी समझा दें जी मुझे। जी, वो तहरीर लगाया ना, मैं तहरीर से ऊपर ही इनको बताता हूँ। पहली लाइन के इनके खिलाफ है, उसके बाद नहीं वहीं पे नहीं, जवाब है। अपने मफहूम में बता देना, फिर मैं उनसे लगवा लेती हूँ। वो लगाएंगे तो मैं मफहूम बता देता हूँ ना, कोई बात नहीं। कौन सी लगाए किस जो चीज़ है से लगा उसमें हुआ क्या है? मत्थे पे लगा पहले दूं? 3 घंटे इससे बल्कि पीछे बात पेज सुने, ही नहीं अच्छा कहां से पढ़ना है? कौन से पेज से बताओ? वही जो आपने पढ़ा है, अच्छा वही जो पढ़ा, ठीक है। ये ये रही किताब बहन वही पहला शुरू में पेज। तो नहीं। यार इसको एक मिनट चुप तो करवाए ना, हर बात में बीच में। ये जी पहला पेज है, मैं ऑडियंस को भी दिखा दूं। किताब शुरू इधर से हो रही, इसके पीछे जा ही नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, माउस मेरा अड़ रहा है। अब ये देखे, इसके पीछे ठीक नीचे है। में आ रहा हूं। ये देखे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, ये किताब शुरू है। हम तो पर्ची वाले बंदे नहीं भाई, एक किताब आगे एक किताब पीछे। अब यहां से मामला शुरू है। वही पेज के उससे पीछे 2 सफे पीछे करने हैं आपकी, जैसे आप कहें। अगलीका भाई उसी पेज से लगाना है। नहीं, वही पेज जो पहले लगा के पढ़ा है ना, वही मैंने पढ़ना है, अच्छा सिर्फ वही कुछ भी पढ़ना नहीं। आपने, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ले जी मुझे आपने वही। ये भी बताना है कि जब आपसे लोग कहते थे कि तुम लोग तो कलमे में
مرزا صاحب کو شامل کرتے ہو تو میں ہمیشہ ان سے انہیں لڑ پتا کر ہوتا آتی تھا ہوں. انہیں پتا ہوتا تھا. ہاں جی. آپ کا کہتے تھے اگلیکا بھائی جواب میں؟ جی جی میں نے آپ کو پہلے بھی جواب دے دیا اس کا، کیونکہ ہم وہ ان کے ذل اور بغض ہے نا، تو جیسے ہاں. انسان ہوتا ہے اس کا سایہ تو الگ نہیں ہوتا، تو وہ تو ہم شامل سمجھتے تھے. صفت کے اعتبار سے اس میں ہاں صفت کے اعتبار جی سے. یہ اچھا بات بہن یہ دیکھ لیں، کیوں نہیں پتا اب ہمیں. آڈینس یہ نہ کہے کہ میں کو غلط کر رہا ہوں. یہ 7واں پیج آ گیا اور ابھی ہے وسیع جلسہ گاہ کی ضرورت. یہاں سے شروع ہوا معاملہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہم نیچے جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. جہاں سے روک رہا ہوں مجھے بتا دینا. یہ بلکہ میں یوں کر لیتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے آڈینس کو. جہاں سے آپ کا دل کرے. یہ دیکھیں جی، یہ نہیں 9واں وہی پیج جو آ آپ نے گیا ہے. بات پڑھی ہے نا وہی لگا دیں پیارے بھائی، آپ باقی چپ کریں، پیغامیوں کی بد زبانی ہے جی. ٹھیک یہ ہے، دیکھتے ہیں. ایسی اسکرولائسس سے کرتے جائیں. ہاں جی ہاں جی، یہ 13ویں سے ہی مضمون سٹارٹ ہوتا ہے یہ والا نا. لوگ کہتے ہیں جی. نیچے کریں. نہیں انہوں نے وہ الفاظ کہا کہ غلطی سے منہ سے نکلے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ اچھا چیز معافی مانگ لی اس کے اوپر انہوں نے. مطلب یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ غلطی سے لیں نکلے. جی، یہ 13واں پیج آ گیا ہے اور یہ ہو رہا ہے مضمون شروع. یہ جی ہاں جی، یہ میں پورا پیج کر دیتا ہوں جی. یہاں پہ اسم ہوتا ہے آمد کی بس پیش گوئی کے جی. مصداق ہاں جی حضرت ہاں جی مسیح موعود ہیں. جی اب یہاں سے سمجھیے گا، ہاں جی سمجھائیں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس آیت مسیح موعود، یہ آیت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے. اچھا ایسا متعلق سے آپ کیا لیتی ہیں بہن، آپ یہ مجھے بتا دیں. اباؤٹ سیکر مجھے سمجھنے دیں اپنے بھائی سے. آپ میوٹ کر لو بے شک، میں اس وقت بہت سیریس سمجھ رہی ہوں. جی ان کے بارے میں. ہاں متعلق ہوتا ہے بارے میں، ٹھیک سمجھیے آپ. اور احمد اب ہم آپ اس کو ہی تھوڑا ہیں. جی، اور احمد آپ ہی ہیں، لیکن اس کے اور خلاف احمد کہا آپ ہی ہیں جاتا لیکن ہے. اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ آپ دلیل کے دے رہے ہیں. سوا. جی 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 سن لیں میں دے سن رہے دیتا ہوں ہیں. دلیل. وہ کہتے ہیں کہ آپ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے سوا. اب یہاں پر بات آتی ہے، سوا، آپ کے سوا، اس سے اب کیا مراد ہے؟ آپ کے علاوہ کسی اور شخص کو. نہیں اس کو آگے پڑھنا چھوڑ دیں. آپ کے سوا سے بھی کچھ ملتا ہے. سوا کس کو کہتے ہیں؟ ادر دین یو. ادر دین. اب ہم اس سے لیں گے کہ ان کے علاوہ یہ کسی پر نہیں آتی. مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں، یہ کون کہتے ہیں؟ غیر ازمات، غیر احمدی، ٹھیک ہے، کہ نہیں غیر یہ ان احمدی کے سوا نہیں، کسی اور شخص پر لاہوری یہاں پہ کہتے ہیں. یہی ٹھیک ہے. اب سنیے گا. ابھی جی سن. بتا کیا، یہ تمام ہی کہیں گے. اب جو میرے مد مقابل ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور تمام جو غیر احمدی مسلمان ہیں یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آگے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے. یہ دیکھیں اس میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رکھا ہے، ٹھیک ہے. نہیں اس کے کہاں بعد رکھا ہے وہ پہلے؟ بھائی اس کے سوا نہیں ہو احمد سکتے. آپ ہی ہیں بھائی. یہ اوپر تو دیکھیں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی سے کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں. اس ہیس کا بھی مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی کوئی اور تحریر نہ ہو، حضرت مسلم علیہ السلام کی کسی بھی اور تحریر میں اگر نہ ہو کہ نہیں وہ آیت صرف تو اور صرف یہاں پہ حضرت غلط مسیح تو نہیں السلام ہو کو سکتا کوٹ نا. کرتے رہے ہیں. جی اس کا یہاں پر مطلب یہ غلط لکھا ہوا ہے جی بہن. یہاں پہ غلط تو اس نہیں ہو آیت، سکتا نا. میں عرض کر رہا ہوں نا، اس تحریر کو ہم اس تحریر سے سمجھیں گے. اگر آپ کو پھر بھی وہ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، آپ سمجھتی ہیں نہیں، آپ جیسے ضد کر رہی ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے. یہ انہوں نے کلیئر کر دی ہے یہاں پر پہلی بات. کیا ٹھیک ہے، کلیئر کیا؟ آپ مجھے اپنے الفاظ میں بتا دیں، اس لیے کہ میں واقعی کنفیوز ہوں. ہاں جی. وہ جیسے سامنے لائیں. جی جیسے بہن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسم احمد ہے نا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو شامل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے. یہ میں ایک اور یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے اس نا. کا مطلب ہے کہ حضرت مسلم موعود کہہ رہے ہیں آپ کے سن لیں، اپوزٹ دے رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسم احمد ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں شامل ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ اگر ہوگی تو یہ حد تک ہے. سوال یہ ہے، اب جی اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے کیا اس میں کچھ ایڈ کر لیا جائے تو حد تک ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس پر دلائل ہیں.
नहीं, एक मिनट, अब मैं जो समझी हूँ, पहली लाइन देखें कि मेरा ये अकीदा है कि आयत मसीह मौद के मुतल्लिक है और अहमद आप ही हैं। जी अब वो अकीदा जो अभी आपने बताया कि कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और कोई और शख्स उसमें आ नहीं सकता, आया तो हद तक होगी। अब ये दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी जो है मुस्लिम मौद कह रहे हैं कि नहीं, आयत मसीह मौद के मुतल्लिक है और अहमद आप ही हैं। ही इसलिए हैं कि ओनली आप हैं। नहीं 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 नहीं, ओनली नहीं है, ओनली नहीं है। इसी ये अब एक लफ्ज से गलती खा गई है ना। मसलन इस दुनिया में, इस रूहे जमीन पर अब मसीह मौद ही है, सही है। मिसाल के तौर पर दूसरे नहीं हैं, जैसे अहमद रजा साहब बलेरी साहब नहीं है, दूसरे कोई और मुहद्दिस हैं वो नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। आपने जो इनमें एग्जांपल दिए वो जुमला दोहराइएगा। इस दुनिया में, इस दुनिया में उस वक्त की बात हो रही है ना कि कोई नहीं है, ठीक है, मसीह कोई मौला नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, के सिवा, जी, हजरत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई ये नहीं है। सवा वाला जुमला नहीं है ना, ऐसा जुमला लें जिसमें लिखा हुआ है कि अहमद आप ही हैं। हाँ, अगला, जी लेकिन मैं जहां तक गौर करता हूं, ये लेकिन वो जरा मसीह सल्लल्लाहु को फरमा रहे हैं ना कि एक मिनट आप वही चुप है। कर जाए ना, नहीं मैं कैमरा बंद कर रहा हूं, मैं लाइन पढ़ा दूं ताकि भूल ना जाए, फिर आप कहेंगे गलत बयानी कर रहा है। लेकिन मैं जहां तक गौर करता हूं, मेरा यकीन बढ़ता जाता है और मैं ईमान रखता हूं कि अहमद का जो लफ्ज कुरान करीम में आया है वो हजरत मसीह मऊद के मुतल्लिक ही है। ठीक हो गया जी, जजाकल्लाह। अब अगली का भाई क्या है, इसको जो मुझे समझ आया जी है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, पहली बात इसी तहरीर में कि बहन वो उनके मैंने सिवा एक मिनट लिखना अजलिका भाई, लिखना मैंने जाना, कैमरा बंद कर दिया, मैं कलमा वाला भी दिखाता जाऊं, कलमा के अंदर कौन कौन शामिल है। वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, वो तो बहन को भी पता है, वो कह रही है टिकटॉक अच्छा, पर आके इन्हें दिखाया बताओ, था। इन्हें पता सारा है, इन्हें पता सारा है। जी जी जजाकल्लाह। जी जी, मुझे इस तहरीर सॉरी का भी सॉरी पता था। मुझे दिखाने से पहले मुझे पता था जो आप तहरीर पेश करने वाले हैं, इस पर मुझे पहले ही पता था। जो मुझे आप मॉडरेटर बोलेंगे से हटा लफ्ज दीजिए, सीकर को मॉडरेटर से हटा दीजिए, जजाकल्लाह। कलमे वाला कलमे भी वाली पढ़ना तहरीर जरा, कौन सी सीकर भाई? भाई जरा कलमे वाला भी पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है। सीकर नहीं, वो कौन कर सा देते वाला? हैं। पता क्या बहन, पता क्या बात है, असल में जब किसी भी चीज को रंग चढ़ा दिया जाए ना, कोई अपने से लेकर, ठीक है, और उसको इस तरह पेश किया जाए, तो बाज दफा तहरीर में ऐसी चीज मौजूद होती है कि वो लगती यूं है। मिसाल के तौर पर अ, ये अल इदाब अल मुफर्रद एक है बाब, नहीं नहीं बुखारी शरीफ भाई, का है। पहले मुझे ये तो बात समझा सुन दें लें, कि अभी जो हवाला नहीं मैं लगा था आपको उसका, वो जो वही उसी वाले से रिलेटेड है, आप समझिएगा। इस तहरीर को आप कैसे समझती हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये तहरीर कैसी है। वो बाब है अल उकल अल रजल मा आ अमर अल्लाह, ठीक है। इसमें हदीस शरीफ है और यहाँ पर बात कर रहे हैं हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह अन्हा। किन से कर रहे हैं? ये तीन है वहां पर, बुखारी शरीफ ने इनकी हदीस कोट की है। तीन शख्सियत है वहां पर, हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अम्मा आयशा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनता है कि हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ जो है ना हजरत अम्मा आयशा से टकरा जाता है, लग जाता है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये जी जी जी, जुमला बात कुछ मुझे नहीं समझ आ रही, वो भूल जाना है हमने जो मैं हवाला भी उसी खोला तरफ था। चले, मैं उसी तरफ आ जाना था बहुत जल्दी इसी हदीस को लेकर। लेकिन चलें, वहां से भी आपको क्लियर होता है, वो जो मैंने मैं बताया बता भी देती हूँ आपको। कि जो मुझे ये समझ आई है कि हज़रत मुस्लिम मऊद ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि उसमें कोई और शामिल नहीं हो सकता, लेकिन उनके ख्याल में जो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मसीह मऊद ही अहमद हैं। नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं कि वो लोग जो लोग कहते हैं ना, मफहूम में बयान कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का ऐड कर दिया जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक है, ठीक है। हाँ, इसको क्लियर कर रहे हैं कि क्या क्लियर इसमें जो किया? है वो हजरत मसीह इस्लाम ही शामिल है। भी शामिल हैं या फिर सिर्फ शामिल हैं? ना ना ना, अभी तक सिर्फ शामिल है। शामिल से अगर मुराद ये हाँ, कि एंड मोहम्मद कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बिल्कुल डेफिनेट, ये तो अकीदा भी जमात का यही है ना। पहली दो बात समझने दो वाली बात ये दो है। लोग शामिल हैं,
जी या सिर्फ एक ही है? दो दो अगलिका भाई ये वाला जो है ना हमने लाइव पढ़ा था लाइव, जी और आप मियाँ जी जो फेवरेट 49 है उनसे भी पूछिएगा। ये बहन बात सुने, आपको माजरत के साथ मेरे ख्याल में बाकी गेस्ट आए हैं, अब वो आप कान पकड़ने वाली बात करके ना उनको डर पड़ गया अब, वरना मैं अभी मेरे सामने अल फजल खुला हुआ है जिसमें उसने कहा कि दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं, सिर्फ मसीह मऊद इस आयत के अंदर शामिल है, एक ही रसूल मसीह मऊद है। मैं जी अभी जी दिखा दूंगा, जी लेकिन वो ये भी फिर भी देख कान लेते नहीं हैं। पकड़ेगा, जी ये जी फिर भी वो मैं क्यों दिखा दूं, नौकर हूं, आप चुप करें इधर। कान पकड़ने वाली बात तो छोड़ दें, वो ये मैं किसने पकड़ की थी लूंगी तो कान? उसमें हम वैसे अगर शर्म होना, ये कान पकड़ के टिकटॉक पे बैठे, मैं अगर शर्म हो। अभी अब तक आगे तो चलें, ये कभी नहीं मानेगा, ये कभी नहीं नहीं मानेगा, उसको सब पता है, नहीं उसको बात सब पता समझ है। आगे चले, देख लेते हैं ना। नहीं अब क्या बहन बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आई क्या बोला आपने। आगे चले, छोड़ें। आप लोग आपस में जो है ना कोई बात ना करें। सीकर मुझे दूसरा वाला हवाला भी दिखाएं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो हवाला नहीं आ रहा, इसलिए मैं उस पर नहीं बात आप नहीं कर पहले सकती। आप मुझे बताएं ना, आप जो बता रही थी कि क्या मैं पढ़ के हम सुना, बहन ये मैं पढ़ कहती के हैं सुना कि देता नबी हूँ, सल्लम मैं के पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं है और एक इसमें। मिनट भाई, एक मिनट हम सब्र हवाला कर ले लो, लेते मुझे हैं, कहा उन्होंने, मेरा नाम लिया है। मैं हवाला ले लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ अगली का भाई। अच्छा ठीक है, मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ बहन, ठीक है। सुना दें। और ये अल-फजल आपके पास पढ़ा हुआ है, याद नहीं आपने अपनी लाइफ पे पढ़ा था? हाँ हाँ पढ़ा हुआ है। ये वही अल-फजल है, आप रीचेक कर सकती हैं इस पे। मैं स्क्रीन अभी दोबारा से फोन वो दूसरे आना पड़ेगा मुझे। अच्छा जी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्योंकि जैसा कि इस इनाम में मजकूर है, मेरे नजदीक, गौर से सुनते जाए जरा, ये बशीरुद्दीन महमूद साहब कह रहे थे ना कि और तहरीर, मेरे नजदीक वो रसूल जिसका इसम जात अहमद है हजरत मसीह मऊद ही है, और यहां यही साबित करना मेरे जिम्मे है, मगर किसी की निस्बत यह कहना कि वही इस पेशन गोई का मिज़दाक है, इस बात को लाजिम नहीं करता कि दूसरों की नफी की जाए। अगर नफी भी जरूरी रखी जाए तो फिर दुनिया के हर एक शख्स की निस्बत साबित करना होगा वो इस पेशन गोई का मिस्दाक नहीं। जब इस आयत में एक रसूल जिसका इसम जात अहमद हो जिक्र ही दो का नहीं, और इसका तायुन हम हजरत मसीह मौत पर करते हैं, तो इससे खुद नतीजा निकल आया कि दूसरा इसका मिस्दाक नहीं। और जब हम यह साबित कर दे कि हजरत मसीह मऊद इस पेशन गोई के मिस्दाक हैं, तो यह भी साबित हो गया कि दूसरा कोई शख्स इसका मिस्दाक नहीं। अलामात तो ताइन के लिए होती हैं, इसलिए जब एक ही शख्स की पेशन गोई हो और एक शख्स पर इसकी अलामात चिस्पा हो जाए तो इस शख्स का ताइन भी हो गया। फिर इस बहस का क्या मानी कि फला है या फला नहीं, क्लियर कट, तबाही फेर दी। आगे आगे सुने जरा, वो कहते हैं, मैं ताकि पूरा पढ़ दूं ना ताकि पंक्चर ही उखड़ जाए पूरा। वो कहते हैं मसलन आपके जिम्मे इस बात का सबूत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिज़दाक है। ये लाहौरियों कह रहे हैं कि तुमने साबित कर रहा है कि नबी पाक इसके मिज़दाक है। ये लाहौरी बैठा आपके साथ ऊपर, वो कह रहे हैं तुमने ये साबित करना है कि नबी पाक इसके मिज़दाक है। तो क्या इस बात को साबित करने के बाद आपके लिए यह भी साबित करना जरूरी होगा कि कोई और शख्स इसका मिज़दाक नहीं? वो कहते हैं जब नबी पाक तुमने साबित कर दिए तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम बाकियों को नफी करते फिरो। आगे सुने, उसका लॉजिक चेक करें। जब आप साबित कर दें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम अलामात पाई जाती है जो इस जगह बताई गई है, तो आपने अपना दावा साबित कर दिया, क्योंकि इस आयत में एक ही शख्स अहमद नाम की खबर दी गई है, ना दो की। जब इस पेशगोई का एक मुस्तहिक मिल गया तो इंतजार खत्म हुआ और पेशन गोई पूरी हो गई। इसी तरह अगर यह साबित कर दूं कि हजरत मसीह मौद इसके मिज़दाक है, तो यह भी साबित हो गया कि अहमद नाम अल रसूल आप ही है, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं, क्योंकि अहमद नाम के एक ही रसूल की इस जगह खबर दी गई है, ना इससे ज्यादा की। आगे सुने दोस्तों, वो कहते हैं कोई शख्स कह दे इनके ताइन से तो साबित हुआ कि आप भी एक मिज़दाक है, और कहां साबित हुआ कि आप ही हैं? ये जो अभी आपसे सवाल किया जा रहा था ना कि आप ही हैं, वो कहते हैं तो क्या ये इतराज दुरुस्त होगा? इसकी जगह जवाब दिया जाएगा इस पेशन गोई में एक शख्स की खबर दी गई है जो जाहिर हो गया। अब तुम्हारे नजदीक मुस्तहिक अगर कोई और भी है तो इसे पेश करो, वरना एक रसूल की पेशन गोई जब एक शख्स पर चिस्पा हो गई तो वही वो रसूल है, दूसरा इसका मुस्तहिक नहीं। मैंने अपने जिम्मा, बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं, मैंने अपने जिम्मा इस बात का सबूत लिया है कि अहमद नाम के जिस रसूल की खबर इस सूरत में दी गई है वो हजरत मसीह मऊद है। और मेरे भाइयों, दुनिया को कितना बेवकूफ समझते हो। आगे सुने, ये जो ही का आपने पूछा ना, भी है या ही है, ब्रैकेट में आप अपना अल फजल खोल लें,
ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के लिखा गया है इस सबूत में ही का सवाल आप ही हल हो जाता है, और जो आपने लिखा है कि हम भी तो जिल्ली तौर पर, या इतना जिल साथ ही रहता है, देखिए कैसी चपेट बजने लगी, जिल्ली तौर पर हजरत मसीह मौद को इसका मिस्दाक मानते हैं। लॉरियो ने कहीं पर कह दिया कि आप भी तो जिल्ली तौर पर मानते हैं ना मसीह मौद को इसका मिस्दाक, तो अब क्लियर होने लगा अकीदा। वो कहते हैं यहां जिल्लियत की बहस नहीं, ये सवाल कि जिल्ली तौर पर हजरत मसीह मौद पेशन गोई के मिस्दाक है बिल्कुल अलहदा है। अगर ये पेशन गोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिस्पा होती है तो जिल्ली तौर पर फिर सब उम्मत पेशन गोई में आ गई। हजरत साहब की इसमें क्या खसूसियत? वो कहता है भाई कि अगर नबी पाक जिल्ली तौर पर तमाम नबी पाक के साथ शामिल होंगे तो फिर हजरत साहब की क्या खसूसियत है, मिर्जा साहब की क्या खसूसियत है अगर सब उम्मत नहीं बीच में आ जाना? तो आप बेशक ऐसा माने, हम तो जिल्ली तौर पर इस अहमद वाली पेशन गोई में आपको मिस्दाक नहीं मानते, बल्कि हमारे नजदीक आप इसके हकीकी मिस्दाक है। और पढ़ू? सीकर भाई, जी अलीमत भाई। मैंने एक बात पूछनी थी कि क्या मिर्जा साहब ने भी क्लेम किया है कि मैं हूं इसका मिस्दाक? अजीब दबे दबे अल्फाजों में उन्होंने भी किया है अली अहमद भाई, बिल्कुल किया है। वो कहाँ किया है? अगर उन्होंने किया तो वो देखना दबे पड़ेगा, अल्फाज में नहीं किया हुआ, क्योंकि मुजर्रद मुजर्रद मिजाज। अहमद भी लिखा है उन्होंने, और अपने लिए, अपने ज़हूर के लिए, जो दूसरी बासत के लिए कुरान पाक की आयत उन्होंने यही वाली दी है, वबशर बिरसूलिन याती में बादी इस्मुहु मतलब अहमद। जैसे दरियातुल उलूम में भी है। उन्होंने यहाँ कहा है वो पे सिलसिला, मैं याद करा दूं सीकर भाई, वो सिलसिला पेशन गोई का जो है वो पूरे का पूरा मतलब जेरो जबर। जेरो जबर हो जाता है अगर इसको ना माना जाए तो। भाई बिल्कुल। साहब क्या अभी तक मौजूद हैं? जी वैसे अंजलिका साहब से बहन जरा एक मिनट जरा आपको कान पकड़ने वाली बात कर रहे हैं। या ये कमेंट बेशक ऑन कर दें, अब तो खैर वो मसला ही नहीं है, तो उनको ऑन कर दें, करे बात भैया। मैं ये कह रहा था कि देखें, अगर तो वो पता चल जाए ना, क्योंकि किसी का बेटा अपने अब्बा को न्यूटन नहीं बना सकता या किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो तहरीरें पढ़ी हैं वो तो आपने जो पढ़ी हैं, ये उसका इनकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ अपने नॉलेज के लिए कि इस आयत को उन्होंने अपने हक में अगर क्लेम किया है तो वो देखना चाहिए। अगर उन्होंने किया तो फिर तो ठीक है, लेकिन कोई किसी को तो नहीं बना सकता। ये भाई इसका ना बड़ा आसान हल है कि देखें, मिर्जा साहब ने बिल्कुल खुद को क्लेम किया है, तोहफा गोलड़िया में खुल डुलकर किया उन्होंने क्लेम, इजाजुल मसीह में क्लेम किया है, इस्मो अहमद के रंग में होकर मैं आया हूं, आखिरी ईंट खुद को करार दिया, और बड़ा मुजर्रद अहमद खुद को कहा, और उन्होंने कहा अगर मुझे बीच में से निकाल दो ना तो पूरा जेरो जबर हो क्लियर जाता कहा। है। वैसे अगर किसी किताब या पेज का कोई हवाला है तो वो जरूर पेश वो करना, मैं आपको ना अपने बल्कि एक लिंक ही शेयर कर भेज दूंगा, देना। पूरा हमने हाँ, यूट्यूब पे भेज चढ़ाया देना, है मेरे पूरा लिंक, इनबॉक्स में भेज देना। मैं आपको दूसरी भेज एक दूंगा। बात और मैंने पूछनी थी आपसे, ये जो आपने मोहम्मद इनाम और मोहम्मद इकाम जो है, हाँ जी, ये तो मीर मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, उनकी नज़म है, और उन्होंने क्लियर ऊपर लिखा हुआ है कि ये नात है और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने लिखी है। और अगर आप इस नात को पूरा पढ़ें तो उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सीरत बताई गई है। अगर कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। नहीं हमने पढ़ी है, अगले दिन हमने पूरी चलाई हाँ, है। वो पूरी सीरत उन्हीं की उन्होंने बयान की है। अगर आप उसको देखें, उसमें जो बातें बयान हुई हैं कि लिया से जुल्म का इंतकाम और इस तरह की और बातें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी शिर्क के का ऊपर हिस्सा है है। और बाकी सारी चीजें, हाँ जी वो हमने हाँ, बिल्कुल सुनी वही है, और उसका एक सारी हवाला लगाया बातें हमने। ठीक है। उस और हवाले के उस अंदर वक्त आखिरी ना जो था मिनहुम वो भी बुत ही शामिल बुत है। थे और तौहीद का नाम लेने वाला कोई नहीं था, तो आपने तौहीद को कायम किया। ये सारी हिस्ट्री उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें बयान की है। मुकरम भाई ये अगर दो आप बातें सिर्फ थी एक जो मिनट मैंने दें तो बिल्कुल जी इसी जी पे टॉपिक पे आते हैं। सिर्फ मैं चूंकि इतनी मेहनत से मैंने एक चीज पढ़ी है, मैं एक चीज क्योंकि सिर्फ कंफर्म मैं करना चाहूंगा। ये जो नात है, ये मैंने उनके एक कलाम है बुखारे दिल, उस वो मुझे मिली थी, मैंने उसमें पढ़ी थी, उसमें ठीक हो उन्हीं गया। के नाम से है और रसूल करीम सल्लल्लाहु मुकरम अलैहि भाई वसल्लम आपको की आवाज ही आ रही मेरी? शान में। जी बोलें। बस मैं एक मिनट आपसे चाह रहा हूं बहन, जरूर। आपको ये जो चीजें मैंने पढ़ के सुनाई है, इखलाकन फर्ज बनता है अब आपका कि एक बंदे से कहे माफी मांगे या कान पकड़ ले। हाँ, लेकिन वो उनका मैं शॉर्ट फीडबैक पहले लूंगी ना। ठीक है, जब आप पे छोड़ा मैंने, जरा करें फिर हम आते हैं नात पे।
جی اگلیکا بھائی، حضرت مسلم معود نے جو لکھا ہے آپ کا، اس کے بارے میں کیا فائنل کمنٹس ہیں؟ جی فائنل پوائنٹس یہ ہیں کہ پہلے ایک بھائی نے بات کی، پھر دوسرے بھائی نے، پھر تیسرے بھائی نے، لیکن وہ بات اپنے دبانے کی کوشش کی، لیکن شکریہ پھر اپنے توجہ دلوا دی اس طرف. میں منتظر تھا کہ کب میری باری آئے گی اور مجھے موقع دیا جائے گا، ہاں ورنہ تو لیکن آپ وہ چلا علی لیتے احمد مجھے بھائی جلدی. بولے ہی نہیں تھے نا جب سے آئے تھے نا، وہ بولے ہی نہیں تھے، تو میں نے کہا پھر ان کو بھی موقع دے دیتے ہیں. جی جی بہت آپ بتا دیں. جی بہت شکریہ. جی اب میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایک تحریر سے تو میں نے بالکل صاف ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح حضرت مسیح السلام کو لے رہے ہیں. اب انہوں نے دوسری تحریر رکھی، نہیں ٹھیک ہے، کس اور طرح انہوں لے نے رہے، یہ کیا مطلب؟ پہلی میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں رکھتے ہیں، اور ان کے ذل اور بروز کیونکہ ہم مانتے ہیں حضرت مسیح السلام کو، تو وہ شامل ہیں. جو ٹھیک جو ہے جو بک دکھائی تھی اس میں. جی، جو وہ حوالہ انہوں نے آ کے لگایا نا، جس میں اوپر لکھا تھا اسم احمد سے، جی جی، ٹھیک تو ہے، آپ کو ملا لگا کہ اس جو کے اندر انہوں نے ذل اور بروز کے طور پر وسیع موت کو لیا ہے، ادروائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. وہ تو انہی کی تحریر میں یہ لکھا ہے. مجھے کیسے لگا، انہوں نے خود لکھا ہے کہ اگر آپ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سمجھتے ہیں نا کہ اس میں کسی کو اور کو ایڈ کرنا، جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو وہاں پہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، ورنہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سیدھا لکھیں کہ اس جو آیت ہے نا، اس میں صرف حضرت مسیح السلام ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں. وہ یہی لکھا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے. نہیں اس میں یہ نہیں لکھا، اس میں یہ میں نہیں پڑھ لکھا. لیتی ہوں اب وہی. جو دوسرا میں بتاتا ہوں، اب جو دوسرا والا دیا نا بزرگوں نے، اس میں ایسی ایک انہوں نے تحریر پڑھی ہے. پہلے میں تو بالکل نہیں لکھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف حضرت مسیح السلام ہی ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. اس تحریر سے تو قطعاً آپ ثابت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، نہ اچھا کوئی دوسرا. میرا بالکل اپوزٹ ہے آپ کے خیال سے، جو میں اپنا اپنا دے دیتے ہیں، کوئی کسی کو مجبور تھوڑی کر سکتا. پہلی والی میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو ایڈ کیا تو حد تک ہو جائے گی، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس میں صرف حضرت مسیح موعود ہی ہیں. صرف نہیں ہے، صرف نہیں ہے، صرف کا لفظ دکھا دیں، بالکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملتا آپ کو. ٹھیک ہے، مطلب میں نے اس اپنے الفاظ میں میں بتائی ہے بات کہ یہ مطلب بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اگلی نہیں تحریر نہیں بن رہا. میرے نزدیک بن رہا ہے، میں اس کو پروف بھی کروں گی. آپ بتائیں. اب آپ کہیں نہیں گے کہ اس پھر تو بات پہ میں خلاف جاتی ہوں، تو میں خلاف نہیں جا رہی ہوں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے یہ پورا رسالہ الفضل کئی دن لگا کر لائیو بھی پڑھا تھا، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے لاہوریوں سے بات کر رہے تھے، اور لاہوریوں نے 3 چیزیں ثابت کرنی تھیں، اور حضرت مسلم موعود نے 2 چیزیں ثابت کرنی تھیں. اور وہ 2 چیزیں یہ تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اسم احمد کے مصداق صرف میں اس لیے زور دے رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ مرزا صاحب ہیں. اچھا آگے بتائیں. جی، جو آپ نے یہ ابھی بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، صرف مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ جی تحریر مجھے دے دیں تو بات ختم. ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں. جی یہ دے دیں، یہ کام جی کی ہے. ہاں جی، اس میں ہونا چاہیے جیسے آپ نے واضح بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، صرف مسیح موعود السلام انہوں ہے. نے کہا تھا کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. بحث یہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں کون کس اور طرح نہیں، اور کی بات نہیں، اور نہیں بات کرنی. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاہوری جماعت تھی نا، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا. جس طرح آپ کہہ رہی میرا ایک ذاتی نظریہ ہے. اب ان کے نظریے کو فیل کرنا ہے، اگر تو ان کے نظریے کو فیل کرنا تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ آپ نے بات یہاں پہ جو ٹاپک ہے نا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح السلام، کیا دونوں ہیں یا ایک فرد واحد ہے؟ یہ بات ہوئی نا ابھی ہماری، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر تو وہ لاہوری نہیں ہے. اگر لاہوری آئیں گے تو میں انہیں اس طرح سے جواب دے دوں گا جس طرح وہ حضرت مسلم علیہ السلام ان سے سوال جواب کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے غیر احمدیوں سے، اور کیونکہ احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جو اسم احمد ہے اس میں جو اول مصداق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت مسیح السلام بھی ہیں. یہ حضرت مسلم موعود کا یہ جو کتاب حوالہ دیا ہے، ہم اس حوالے کی بات کر رہے ہیں نا. اس وقت میں صرف حوالہ سوچ کے جواب دے رہی ہوں. غیر احمدیوں سے نہیں پیاری بہن، ایسے نہیں ہوتا. بات ہوتی ہے حوالہ دیکھ نہیں ہوتی.
बात होती है कि वो किस पैनर में बात हो रही है। अब कहीं पे ना, अभी तक मैंने, अल्लाह की कसम, मैं 2013 से ये बातचीत कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुपों से, अभी तक मेरा ये रवैया नहीं रहा। लेकिन अगर मुस्तकबिल में मैं ऐसा करना शुरू कर दूं, ठीक है, जैसे अभी मैं करने लगा था तो आपने रोक दिया, मैं एक हदीस का हवाला दे रहा था, तो वहां पर ये जो शाकमियत करते हैं अहले तशी, किन के खिलाफ ये हजरत लेफ्ट उमर राइट ना हो, तो फिर वरना जवाब शातमियत हम भी खोल देंगे। ये वाला टॉपिक प्यारे भाई, ना मैं अपनी डिट्रैक्ट बात की जाए। मैंने रोक मैं दिया आपसे बात था। नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा ऐसे ना हूँ, किया बिल्कुल जाए। चुप कर, जो नहीं बिल्कुल चुप शातमियत कर। ऐप नहीं इसलिए करते रोक हैं दिया आपने उसका बोले, कोई मुकाबला ही नहीं है शातमियत का, जो अच्छा ऐप नहीं अच्छा, करते। वो आप बाद में मुकाबला बताइएगा, ये ना जो करिए। उन्हें मुकाबला कर लेंगे, जिसने मुकाबले का शौक है मेरे साथ आ जाए। अच्छा, वहां पहले पर जो तो पकड़ो अहले ना, तशी, कान पकड़ो पहले। चुप, मैं पकड़वाता हूँ। वहां पर अहले तशी ये साबित कर रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इससे इससे उमर इससे ने हमारा क्या फिर साबित हो बात रहा कर है? रहा मैं है, क्यों बात साबित कर फिर रहा होगा वही हूँ? ना, बात कर रहा है। साबित मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। ये वो फिर जवाब अच्छा नहीं है, चलो देखो मैं तुम्हें साबित क्या मैं कराता ये हूँ। जवाब नहीं है। वो हमारी यही साबित जवाब है। करेंगे, हम उनकी तो साबित करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ उसकी वजह क्या है। क्योंकि बात करना होता है ना, हर इंसान से जब बात की जाती है उसके अकायद को सामने रख के की जाती है, इसकी वजह आपने होती है। कितना लंबा बोलेगा, इसको क्या हो गया? मतलब अच्छा, जवाब आपने 3 आपने, घंटे मैंने बोले, आपकी तरफ मैंने केस नहीं फेंका बोला। था। दूसरे रुक जाए, हवाला, आपने दूसरे बोला हवाले पे फीडबैक ले लूं। 1 मिनट सीकर, मैं दूसरे हवाले का जी फीडबैक ले लूं। नहीं, हाँ जी। इसको बहन पहले क्लियर कर ले, मैं अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दें प्लीज। जो ये बुखारी शरीफ की हदीस है ना, इस पर जो अहले तशी है ना, ये बहतान बांधते हैं फिर बकवास कि करने पे जा रहा है। अब मैं अग्लिका ओए दोबारा भाई, से चुप ये कर चाह जो, रहा है इसने अगर ब्रॉड नहीं मिले। करते तो मेरे जिम्मे, अग्लिका भाई, अगर क्या ये झूठ मेरा बोलूं, इस हवाले झूठ से कोई बोलूं तो मेरे ताल्लुक जिम्मे। है? जी अग्लिका भाई, हमारे पास है। सवाल जवाब खत्म हो गए हैं कि क्या हम जाके कहेंगे तुम भी ये करते हो तो हम भी ये करेंगे? नहीं इसका नहीं तो नहीं, ये मतलब बनता है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं कह रहा तो हूँ। फिर मैं ये वापस कह आ रहा जाए हूँ हवाले कि पे, मुझे हवाले पे मैं फीडबैक अर्ज कर रहा चाहिए। हूँ, नहीं नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये बात नहीं हो रही कि तुम क्या करते हो, ये तो करनी हो तो मेरे पास करोड़ों हवाले हैं, आप जितने भी चाहिए आप मैं आपको फीडबैक दे दे दें दूंगा। मुझे, जो पढ़ा है ना जी, दूसरा हवाला, उसका मैं फीडबैक मैं दे दें। अर्ज, नहीं नहीं, आप मेरी बात सुन ले, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अब बात किस तरह की जाती है, लोग समझते कैसे हैं, सही है, तहरीर रखते कैसे हैं, आप क्या ठीक है। समझे उससे? उस मैं तहरीर मैं से तो आप क्या समझते हो? मैं अर्ज कर देता हूँ ना, मैं अर्ज कर देता हूँ। अच्छा, सिंपल सा आपसे एक सवाल करता हूँ, छोड़ देते हैं, अरे तशीह को भी, सबको भी, भाइयों को बुरा लगता है, दिलजारी होती है, मैं तो ऐसी बात वैसे भी नहीं करता हूँ, सिक्कर से मेरी खास मोहब्बत है, तो इसलिए तो इसके सामने बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब मुझे आप सिर्फ खाली हवाला एक बता बात रहे बताएं। हैं जी। जी जी, नहीं नहीं, एक सवाल है जिमनी छोटा सा, आप अगर इसका जवाब देना मुनासिब समझे तो प्लीज दीजिएगा कि क्या हजरत उमर फारूक नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल अल्लाह ये सल्लल्लाहु अलैहि फिर वसल्लम वहां की पे हद जा तक रहा कर है, सकते हैं? ये फिर वहां नहीं पे नहीं, जा मैं रहा तो है, ये जिमनी फिर वहां बात पे कर जा रहा रहा हूँ, है। मैं किसी की बात नहीं की, आप किसी सिर्फ की बात हवाले पे नहीं। मुझे फीडबैक दे दें तो मैं नहीं अगले नहीं ये क्वेश्चन पे अब आगे सिर्फ पता बढ़ूंगा। क्या चाह रहा है कि ये कोई करे इस तरह की बात और नहीं नहीं, इसकी मैं ये जान छुटे। नहीं, मैं मुर्गा ये बन ओए, मुर्गा मैं बन, चल मैं मुर्गा बन। मेरी नहीं सीकर, सुन ले, मैं इसमें हवाला सिर्फ लेना है मैंने। मैं कहता हूं जी, इसके मुंह के अल्फाज थे मुर्गा बनने के, मैंने नहीं कहा। इसको कहे मैं भांग दे मुर्गा मैं बन उन्होंने के, सिर्फ कहा वो था गुड़ू अभी गाने गुड़ू अभी दो। करे। बना देता हूँ। इसको कहे मुंह से भांग मैं दे मुर्गा बन के। नहीं नहीं नहीं, क्यों देंगे? वो आप बांग अभी मैंने दोगे, खाई है। आप अभी बांग देंगे, मैं ये बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो। अगली का भाई, अच्छा हवाले पे बात जी, करें प्लीज। मैं हवाले पे बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये मेरे प्यारे की बात है ना, अब इस पर आपको क्यों नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं कमेंट खुल के कर रही कि मैं उसकी ऐसी की तैसी पे दूंगी? जो ये कहे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नाउज़ बिल्लाह मिन गुस्ताख थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्यों नहीं बोल रही ये आप खुल देखा, के? आ गया क्या हो अपनी गया? औकात पे, आ नहीं गया ना चुप अपनी चुप करें औकात आप, पे, नहीं हवाले पे आ बिल्कुल गया चुप, मैं अपनी फीडबैक औकात फीडबैक पे। ले रहा हूँ बहन से सीकर फीडबैक ले भाई रहा इसको हूँ। बोलने दे, इसको बोलने दे, बोलो जी, बोलो, खुल के बोलो। नहीं, मैं कोई इशू नहीं बोल रहा, मैं कोई हवाला नहीं दूंगा, कोई देखिए बाजी, ऐसी उस कम दिन नहीं भी करूंगा, ऐसा मैं हुआ था, सिर्फ। उस दिन भी एक ऐसा हुआ मिनट था, फिर। हमने इनको नहीं, वार्न ऐसा किया नहीं हुआ था, प्यारे भाई, खलीफा हमने इनको साहब, रोका अब था। एक एक मिनट मिनट, रुक जाए भाई, मैं प्यारे भाई बिलाल, रुक जाए, कुछ नहीं बाजी बोल मेरी रहा हूँ बात प्यारे सुने, भाई। बाजी मेरी बिलाल, बात सुने, बाजी और मेरी मेरे बात सुने। पास उस दिन करोड़ों भी हवाले हैं, मैं प्यारे भाई सफिया नहीं बाजी, बोलता एक ऐसी मिनट के बात, लिए इनको नहीं मैं एक ऐसी मिनट के लिए बात रुक बोलता। जाए, एक मिनट के लिए रुक का जाए। भी नहीं अगली है। का भाई, अगली का जी भाई, जी सिर्फ एक मिनट हमें ना, बात, 1 मिनट देता सिर्फ हूँ हमें उनको। एक डिस्क्लेमर जी दे जी लेने दें। करें। उस दिन भी ऐसे हुआ था, इनको के म्यूट करें एक मिनट के लिए, मैं डिस्क्लेमर दे दूं। उस दिन भी ऐसे हुआ था कि मुझे तमाम अहमदियों की दिल आज़ारी करनी पड़ी थी, मुझे मजबूर किया गया था कि इनके मुंह से मैंने वो अल्फाज निकलवाए थे जिसकी रिकॉर्डिंग मैं चाहूँ तो मैं अपलोड कर दूं। मैंने इसलिए अपलोड नहीं की कि इनकी बदनामी ना हो, ठीक है। उस दिन भी मैंने वार्निंग दी थी, आज सीकर ने भी 3 दफ़ा वार्निंग दे दी है, जाहिद भाई ने भी कह दिया है। भाजी अगर इस तरह की बात होगी तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं कि यहाँ पर जो भी माहौल ख़राब हो या कोई ऐसे इल्ज़ामात का तबादला हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा कोई काम हो। अगर ये जानबूझकर उस तरफ जाना चाह रहे हैं और नहीं, गुस्ताखियों पे और इस तरह के इबारात में मैं जाना कर चाह रहे सकती हैं नहीं तो हूँ। इनको इजाज़त है, इनको कहीं जाएं। लेकिन उसके बाद कोई अहमदी हमसे ये तवक्को ना रखे कि हमने फिर कोई लिहाज करना है।
बस इतनी हमारी गुजारिश है आपसे। काज़मी शाह कभी साहब, देखो तमाम मैं अहमदियों को बर्दाश्त ना, करूंगी। बहन माजरत, एक सेकंड, एक बार आपको और जितने अहमदी नीचे सुन रहे हैं, ये गवार है ना, ये बंदा चाह रहा है कि इसके जिनको ये मानता है उनकी गुस्ताखी हो, उनके बारे में तबर्रा किया जाए, ये बंदा चाह रहा है। ये जान बूझ के हजरत उमर को और बीच में ऐसी बातें ला रहा है ताकि ये हम लोग जो है मिर्जा गुलाम अहमद साहब के बारे में कुछ कहे। इस तरह के बदबख्त लोगों को पहचानो और इनका मुहासबा करो और इनके मुंह पे चपेड़े मारो ऐसे घटिया लोगों के ऊपर कि आप ओके देखो हमने किताब सामने खोली हुई है, हम किताब खोलकर एक तो इल्मी प्यारे बात भाई, कर रहे हैं मैं अपनी कुरान तरफ से की। अपना करूंगा मुंह तो बंद बात करो एक कर मिनट। लेना। भाई तुमने एक अब मिनट, जब भी बोलना है तुमने बांग देनी है। चलो ठीक ऊपर है करो, छड़ी मार के पीछे पिछाड़ो ठीक है, ऊपर करो तुम्हारा। लफ्जों को नरम करो थोड़ा। मुझे इसने एक मुझे आखिरी ये क्यों कहा था कि ये मुर्गा बनेगा? इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मुझे ऐसी बात करे? अब इसको क्या मुर्गा बने, मैंने सामने अपना साबित कर दिया जो मैंने बात की थी। इसको क्या मुर्गा बने और वो क्या मुर्गा करे, बनने मैं की ये नहीं बात कहता नहीं क्या हुई थी, नहीं करे। कान पकड़ने की बात हुई थी। अच्छा मेरी बात सुने, मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। एग्लिका भाई, हम कहीं और नहीं जाएंगे, जो हवाले पढ़े गए हैं अगर आप मुझे समझा दें कि आप उससे क्या समझें, बात ख़त्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग सारे बैठकर किसी और ब्रॉड पे भी मिर्ज़ा साहब या उनकी फैमिली के बारे में कुछ बोलें, तो मैं यहाँ पे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती। जी जी बहन, आप बिल्कुल मुख्य ऐसा ना दें, कहने की जरूरत नहीं है, आपकी ब्राड हाजिर है। लेकिन मैं सिर्फ ये कर रहा था, आप मुझे बाद में ताने दे दीजिएगा, सिर्फ नहीं हवाले का ताने मुझे नहीं दे रहा बता हूँ, दें। ताने नहीं दे रहा हूँ। मैं तो कहा कि यहाँ पे और बैठे ताने क्या, कैसे होते हैं? नहीं मैंने कहा कि यहीं पे बैठे हैं, जरूरत नहीं कहीं और जाने की। तो अच्छा, जी, अब मुझे सवाल कर रही थी कि क्या सवाल करें, वो फिर बीच में बंदे पड़ जाते, बोल पड़ते हैं, पता नहीं चलता मैं जी। सिर्फ ये अर्ज़ कर रही हूँ कि पहले वाले हवाले पे आपने बता दिया आप क्या समझे हैं, मैं आपके साथ बैठ कर उसको समझूंगी दोबारा। दूसरा जो हवाले इन्होंने पढ़े हैं अल-फज़ल के, उससे आप क्या समझे मुझे वो बता दें। हाँ जी, उसमें दो शख्सियत की बात हो रही है, ठीक ठीक है। है। एक वो है जो हम समझते हैं, एक वो है जो लाहौरी समझते हैं, ठीक है। अब उनके दरमियान ये सवाल जवाब हो गए, ठीक है, ठीक है, जो कि अल-फज़ल में शाया किए गए हैं। बिल्कुल तो सही है। उनको, हाँ जी, उनको अब ये अपना रंग देकर तो ये यहाँ पे साबित करना चाहते हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह हमारी जमात का ये अकीदा है कि हम सिर्फ इसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखते हैं, हज़रत मोहम्मद मुसल्लम को नहीं लेते। लेकिन अगर आप कभी भी मुझसे आप चाहें तो आप कोई भी चाहे तो मुनाज़रा कर सकता है कि हम इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेते हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। ये बस इतनी सी मैं जानना चाह रही थी बात, और मैं बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करूँगी आपसे, इसलिए कि आप समझें आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जज़ाकल्लाह। हमारे पास नेक्स्ट है शोएब राजा भाई। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी देर से गुफ्तगू सुन रहा था और नतीजा तो बहरहाल यही निकला है जो आपने भी समझ लिया और बाकी सब लोगों ने भी ये समझ लिया कि यहाँ पे जो आपके मुस्लिम मौद साहब हैं वो यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अंजलिका साहब जो है वो पता नहीं क्यों नहीं मान रहे इस बात को, और वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब के साथ पता नहीं क्यों नहीं खड़ा होना चाह रहे। वो उनसे थोड़ा सा इलादगी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो ये नहीं कह रहे। हालांकि जैसे आपने ये बात बयान की कि इनके और उनके दरमियान यही फर्क था कि जो लाहौरी हैं वो एक वक्त के लिए इधर भी खड़े हो गए थे कि हम ज़िल्ली तौर पे मिर्ज़ा साहब को इसका मिस्दाक बना लेते हैं, लेकिन ये जुल्म ना करें कि इसके सिर्फ और सिर्फ जो मिस्दाक हैं वो मिर्ज़ा साहब है, इसके मिस्दाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उम्मत 1400 साल से यही अकीदा लेके चल रही थी। तो आप ये जुल्म ना करें। आप ज़िल्ली तौर पे मिर्ज़ा साहब को लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन जो आपके मुस्लिम मौद साहब हैं दूसरे खलीफा, वो इस जिद पे खड़े हो गए कि भाई अगर तो ज़िल्ली तौर पे उनको ले लेना है तो फिर मिर्ज़ा साहब को आप कैसे नुमाया कर सकते हैं? फिर तो आम उम्मती जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी इसमें ज़िल्ली तौर पे शामिल हैं। तो फिर मिर्ज़ा साहब के आने की या मिर्ज़ा साहब के नुमाया होने की क्या वजह पीछे बाकी रह जाती है? मिर्ज़ा साहब एक ही सूरत में इसमें नुमाया होंगे अगर सिर्फ और सिर्फ इस आयत के मिस्दाक मिर्ज़ा साहब को माना जाए। तो वो इसमें दलाइल रख रहे हैं, और उन्होंने आगे अगर सीकर साहब पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी हुई है कई दफ़ा, मैंने भी ये अनवार खिलाफत बहुत दफ़ा पढ़ी है, उन्होंने आगे 10 दलीलें दी हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 दलीलें दी हैं। और जो 9 नंबर की दलील है ना, ये पूछा गया यहाँ पे सवाल के क्या मिर्ज़ा साहब का भी यही मानना था? हाँ, बिल्कुल मिर्ज़ा साहब का भी यही मानना था कि इस आयत के जो मिस्दाक हैं वो मिर्ज़ा साहब खुद को मानते थे। जब आप 9वीं दलील पढ़े ना, 9 नंबर की दलील,
اس میں انہوں نے وہاں پہ مرزا صاحب کا ہی حوالہ روحانی ذہن سے کاپی کر کے لکھا ہے اور نیچے اس کی تشریح بھی کی ہے. یہ میں نے جب انصر رضا صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مرزا بشیر الدین صاحب سب سے زیادہ مرزا صاحب کا فہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب. محمد علی لاہوری صاحب کو مرزا صاحب کا فہم سمجھ نہیں آیا. مرزا بشیر الدین صاحب ہی حقیقی ریپریزنٹیٹیو ہیں مرزا صاحب کے، ان کی بکس کے. تو انہوں نے نچوڑ نکال کے یہ کتاب انوار خلافت لکھی ہے اور اس کے اندر یہ جو مضمون اسپیشلی اسم احمد کی پیش گوئی کے مصداق جو ہے وہ مرزا صاحب کو انہوں نے یہ سارا نچوڑ مرزا صاحب سے لے کے، اور محمد علی لاہوری صاحب کو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عقیدہ تو میں نے مرزا صاحب سے اور اپنے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین صاحب سے لیا ہوا ہے کہ وہ بھی یہی مانتے تھے. اور جو 7 نمبر کی دلیل ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو پہلے خلیفہ ہیں حکیم نور الدین صاحب، ان کا یہی ماننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا اور مرزا صاحب کا نام احمد تھا، لہٰذا اس پیش گوئی کے مصداق جو ہیں وہ اسم احمد کی یہ صرف مرزا صاحب ہے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. اب یہ ہے کہ میں آپ کو جنجوا بھائی کو لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ کہہ دوں کہ جب ہم نے یہ پورا آرٹیکل پڑھا تھا آن لائن تو اسی آرٹیکل کے اندر ہمیں ایک جگہ پر اینڈ پہ میرے ساتھ جو ہیں وہ بھی تھے، کون تھے بھلا، میاں جی فیوریٹ 49. تو ہم لوگوں مربی نے ناصر صاحب بھی تھے، اللہ سر مربی صاحب بھی تھے، بہت سارے لوگوں نے ہیلپ کی تھی، ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اینڈ پہ ہم نے اس آرٹیکل سے یہی سمجھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے جو آپس میں بحث ہو رہی ہے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں احمدیوں کو کہ ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ آپ جو ہے اتنے احمدیوں سے سائن کروائیں کہ احمدیوں کا بھی عقیدہ ہے. تو خلیفہ ثانی نے مسلم ماؤ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے. تو پھر ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ اگلی دفعہ اگر کوئی آپ لوگوں میں سے